Let's go to the second book, बेंटिनो मसारो की लवली सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग के लिए हम लोग तैयार होते हैं टू लीड एन एपिक लाइफ। बेंटिनो मसारो हमेशा बोलते हैं कि यू आर बॉर्न टू लीड एन एपिक लाइफ, तो वी आर बॉर्न टू लीड एन एपिक लाइफ, तो हम उसको पढ़ते हैं। हु इज रीडिंग द बुक टुडे, सेकंड बुक? Sonia. हाँ, सोनिया, सोनिया बत्रा। सोनिया, इज द होल टेक्स्ट विजिबल टू यू? पूरा का? Yeah, या, yes, ग्रेट yes. ग्रेट। थैंक यू सो मच सोनिया। सो हम लोगों को कल बेंटिनो मसारो ने क्या बताया कि कैसे उन्होंने हम लोगों को डिस्क्लेमर दिया था कि भाई मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो आपको समझ में तब आएगी जब योर ग्राउंड इज रेडी टू एब्जॉर्ब दैट। जैसे कि एक बंजर जमीन के ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है और आपको बूंद का पता भी नहीं चलता है, इट गेट्स एब्जॉर्ब देन एंड देयर। सो इफ योर ग्राउंड इज रेडी फॉर दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग वेरी नाइसली। एंड कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आए तो दोबारा से आप पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को, अपने ब्यूटीफुल वर्ल्ड को आप क्रिएट कर रहे हो। तो मैंने भी एक डिस्क्लेमर आपको ऐड किया था कि प्लीज जरूर रोज आप इसको सुना कीजिए, इसको समझा कीजिए, क्योंकि आप अकेले पढ़ोगे तो आई डाउट हमें समझ में शायद नहीं आएगा। तो इसीलिए आप रोज अटेंड करें क्लास को और इसको जरूर सुने आप। ऑब्वियसली मैजिक बुक को तो सुनना ही है, बट दिस इज मैजिक बुक को उन्होंने बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखा है। दिस इज अ बिट एडवांस्ड बुक, सो वी नीड सम असिस्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस बुक, टू गेट द बुक डिकोडेड इन फ्रंट ऑफ यू। सो विल बी नीडिंग दैट। सो आज के टेक्स्ट में पढ़ते हैं बेंटिनो मसारो क्या बोलना चाहते हैं, उसके बाद विल कैरी ऑन। यस सोनिया। Yeah. Good morning. गुड मॉर्निंग Are सोनिया। yeah. Are you the receiver or the creator of reality? I want you now to imagine what it would be like to never ever receive anything again. What would it be like to not have the feeling or the sense that you are at the receiving end of creation? Yes, you are perceiving creation, but are you really receiving creation? What if you are not receiving creation? And what if that was never the case? What if 100% of the time, every nanosecond, the billions of molecules that make up the universe were placed there by you? What if you are the conceiver and the giver of experiences? That it's you who gives creation its form. What if you are not a mind body walking around in a predetermined physical, external reality, but rather that all of this is your own manifestation? Now, this may not be a completely new concept to you. The idea that we create our reality. But what might be slightly new to you is the more radical approach of recognizing that you have never ever received anything. You have always created this moment. You have always decided how this moment is going to appear, and you can become conscious of this once again. Instead of being an unconscious creator, believing you are the receiver of your own creation, you can step back fully into the creator seat by becoming more conscious as well as more deliberate. You can take back the reins. This is not about control, at least not in the way we have turned control into a negative concept. It is about control in terms of conscious creation. You take control of yourself. You become more deliberate in your manifestations. Feel into the fact that you have never received creation ever. Really feel into it because there is an endless depth to feelings into this. It is not like, oh yeah, I get the idea. That's a fun idea. No, if you feel into it, it starts to become real.
and it shifts your paradigm. So again, for a moment, feel into the fact that you have never ever received creation, that you have always created every single detail of what you perceive. There is no giver of experiences other than you. No one and nothing has ever given you an experience. You have never been on the receiving end of creation. What if that were true? What if this dim reality has always already been 100% your manifestation? Every single detail of it, not just how you respond to things, but the things themselves. This very chair that I am sitting on is you, placing it under my butt. All the time, billions of times per second, you are placing the chair underneath me. What if it was you doing that? What if you were not receiving that? What if this was not external to you? What if there is no external reality whatsoever? Sir, okay. Thank you so much, Great. Sonia. Lovely text, Thank lovely you. text. Thank Thank you you. and lovely reading, of course. बहुत आसानी से बहुत धीरे धीरे करके पढ़ा तुमने ताकि समझ में आए सबको कि ये चीज क्या है. So now is the time that we take charge of our life. We do not blame others for our actuality because we have created the life that we are living right now. बहुत बुरा लगता है. बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कंसल्टेशन जब लेते हैं ना, वो डिस्कस करते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया. तो अगर मैं उनको तभी की तभी ये बता दूं कि उसने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा किया है अपने साथ. अब बेंटिनो मसारो तो यही बोल रहे हैं कि जो भी हमारे साथ होता है, यू आर नॉट द रिसीवर. आप रिसीवर नहीं हो, आप क्रिएटर हो. यू हैव क्रिएटेड योर लाइफ लाइक दिस. If you are the Mukesh Ambani, then you have created your life like that. But if you are not, if you are someone working for Mukesh Ambani, then also you have created your life like that. There is no one, like you cannot hold any other person or circumstance responsible for that. Excuse me. This is the time we have to take charge of our reality and we have to understand that we are the creators of our life. एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और एक हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है. जो सब कॉन्शियस माइंड है वो हमारा ऐसा होता है कि इट डज थिंग्स ऑन इट्स ओन. व्हेन यू डू समथिंग कॉन्शियसली, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है आपने अपने आप को पिंच किया, तो आपको उसी टाइम कॉन्शियस हुआ ना कि आपको फील हुआ ये पिंच मैंने अपने आप को किया है. या प्रेजेंटली आपका जब स्लीपी ड्राउजी स्टेट में होते हो, जब आप नींद में होते हो, बहुत ज्यादा नींद में, आप अलार्म को कितनी बार बंद कर देते हो, स्नूज कर देते हो. कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि मैं उठी हूं, आप मैंने स्नूज करा है, पर आपको पता नहीं किसने अलार्म बंद करी, मैं उठ नहीं पाई. है ना, कई बार होता होगा ना ऐसा. वो इसलिए होता है कि तब आपका कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव रहता है, आपको नहीं पता चलता. लेकिन अगर आपका कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव है और सबकॉन्शियस एक्टिव है और आपने अपने आप को ये आदत डाली हुई है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो आप अपने आप ही 4 बजे उठोगे. आपके कॉन्शियस माइंड को आपको जगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका जो इनर मस्तिष्क है, आपका जो अवचेतन मन है, उसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग आपने कर दी है. कॉन्शियसली सारी प्रोग्रामिंग कर दी है, जानबूझकर. कॉन्शियसनेस का मतलब है कि जानबूझकर आपके जाने में, लाइक यू नो अबाउट द फैक्ट दैट यू आर क्रिएटिंग दैट. है ना. आप अब मान लीजिए घर में कोई विमेन है या फिर मेन भी इस चीज को कर पाएंगे कि आप पानी भर के लाए अपने गिलास में, अपने गिलास में आप पानी भर के लाए हो, तो उसके लिए आप अपने आप को वहां तक लेके गए, फिर आपने पानी को अपने ग्लास में डाला और ग्लास को उठाया और आपने पिया. दैट इज अ कॉन्शियस अफेयर. है ना. लेकिन आपको ये कैसे याद आया कि मुझे वहां तक जाना है,
मुझे अपने कमरे से चलकर किचन तक मान लीजिए जाना है, वो हमारे अवचेतन मन में फेड है। हमें पता है, अब आप किसी नई जगह में जाओगे और अंधेरा कमरा रहेगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है, किस ओर जाना है, किस दिशा में जाना है, किचन कहाँ पर है, वॉशरूम कहाँ पर है, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आप उसी घर में बहुत टाइम से रह रहे हो या जाते आते रहते हो, तब आपको पता चलेगा, क्योंकि वो कॉन्शियस एफर्ट्स के कारण आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली गई है, वो चीज सेव हो गई है। और जब वो चीज सेव हो गई है, तब आप आराम से उसके हिसाब से काम कर सकते हो। तो ये आपके अवचेतन मन में चला जा चुका है। किसने भेजा है? आपने भेजा है, क्योंकि आप ही क्रिएटर हो। तो अगर हमारे लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है, तो भी हमने क्रिएट किया है उसको, और कुछ भी अच्छा हो रहा है तो भी हमने क्रिएट किया है। तो ये जर्नी जो है मैनिफेस्टेशन की, तो आपकी उसी दिन शुरू हुई थी जब आपने पैदा हुए थे। आप उसी दिन से आप मैनिफेस्ट करते जा रहे हो। एवरीथिंग दैट यू आर रिसीविंग इन योर लाइफ इज योर मैनिफेस्टेशन एंड योर क्रिएशन। तो आज हमने जो मैजिक बुक में पढ़ा कि हम लोग डायरेक्टर हैं, हम लोग क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के। तो हम तो क्रिएटर वो बचपन से ही हैं। बचपन से हमने जो पैदा हमने मॉम डैड के पास हुए हम, उसके बाद से जो हमने स्कूल लिया, जहां पर हम लोगों ने पढ़ाई करी, हमारा अगर इंग्लिश में ज्यादा इंटरेस्ट है तो इंग्लिश वाला इंटरेस्ट, हमारा अगर मैथमेटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो वाला इंटरेस्ट, एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड बाय यू। You have consciously created your everything. So now it is the time that ये हमें बता रहे हैं बेंटिनो मसारो, that now you know that आप रिसीवर नहीं हो। आपको किसी ने कोई चीज दी नहीं है, चाहे कोई दुख है, चाहे कोई तकलीफ है, चाहे कोई बहुत अच्छी बात है, चाहे कोई रिवॉर्ड है, चाहे कोई गिफ्ट है, चाहे बहुत सारा पैसा है, वो आपने अपने आप क्रिएट किया है। चाहे फिर वो आपको आप डिसेंडेंट हो, आप मान लीजिए आपको लेगेसी में मिला हो, कोई प्रॉपर्टी मिला हो, फिर भी वो आप ही ने क्रिएट किया है। यू नो दैट। सो ये से बताते हैं कि हम लोगों को अब अपने कॉन्शियस माइंड को यूज करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना एक्टिव कर लेना है, ताकि हम लोग अपनी रियलिटी को समझे, अपनी रियलिटी में अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट कर सके। आप जो एफर्मेशंस करते हो, आप में से बहुत सारे लोग, हम लोग बोलते हैं ना कि एफर्मेशन करो, ग्रैटिट्यूड करो, ग्रैटिट्यूड करने से आपकी एनर्जी एलिवेट होगी। एनर्जी जब एलिवेट होगी और आप एफर्मेशंस को करोगे थैंक यू के साथ, तब आपकी एफर्मेशंस फ्रूटफुल होती हैं। यही बोलते हैं हम लोग। तो जब एफर्मेशन कर रहे हो तब आप क्या कर रहे हो? कॉन्शियसली ही तो क्रिएट कर रहे हो ना अपनी लाइफ को। when you are saying that thank you universe that I have received I am living in my dream house which is so wonderful, which is full of luxury, right? when you are saying that moment and you are reiterating that, बार बार उसको बोल रहे हो, तो री कर रहे हो आप अपने अवचेतन मन में, बार बार उसको बता रहे हो। यानी कि कॉन्शियसली आप क्रिएट कर रहे हो अपनी रियलिटी को। अब चूंकि आपको पता है तो आप ये कर रहे हो। लेकिन इस जर्नी में आने से पहले, स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले, या मैजिक्स एंड मिरेकल्स से अटैच होने से पहले, हम लोगों को इन चीजों का पता नहीं था। तो अनकॉन्शियसली हम लोग गलत चीजें भी अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे थे, जिनका हम लोग अनजाने में कर रहे थे, जो हमें नहीं पता था। हम अनजाने में उन चीजों को क्रिएट करते जा रहे थे। क्रिएटर हम शुरू से ही हैं। पर अब ये समय आ चुका है कि हम समझें, कि कोई और नहीं करता, हम खुद कर रहे हैं। अगर मेरा रिश्ता किसी के साथ बहुत अच्छा है, तो मैंने वो रिश्ता अच्छा क्रिएट किया है। और अगर उसके विपरीत किसी के साथ अगर खराब रिश्ता है मेरा, तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही है। उस बंदे की या उस इंसान की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि अगर मान लीजिए मेरी लाइफ में, अगर मान लीजिए मेरे बच्चे में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि मेरा बच्चा है वो मैंने क्रिएट किया है उसकी लाइफ में। आप तीनों पक्ष को समझिएगा इस चीज को, ठीक है? तो मेरा बच्चा जैसे मान लीजिए एक्स है, तो उस एक्स एक्स की लाइफ में जो डिफिकल्टीज आ रही है वो मैंने लाई है उसकी लाइफ में। अब मैं अगर एक्स इस बात को सोचेगा, एक्स का मतलब है, जैसे मान लीजिए उसका नाम मैं बबलू ले लेती हूँ। अगर बबलू इस बात को सोचेगा कि मेरी लाइफ में क्यों ये प्रॉब्लम्स है, तो बबलू की लाइफ में बबलू ने ये वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। उसके लिए उसकी माँ या पापा या कोई और सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। बबलू ने ही अपने लाइफ में वो वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। ओके, नाउ इफ आई गो टू बबलूज फादर, तो बबलू के फादर की
के बच्चे में, यानी कि उसके बबलू में जो आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एज ए सन उन्होंने अपने बच्चे की लाइफ में क्रिएट करी है। उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बबलू का जो व्यवहार है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उसके फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं सोचूंगी तब वही रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के। आप समझे, तीनों तीनों कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आए। मेरे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मेरे बेटे उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगी, अगर मैं बबलू हूं तो मैं सोचूंगी मेरे कारण ऐसा हो रहा है, और अगर मैं बबलू का फादर हूं तो मैं सोचूंगी कि वो मेरे कारण ऐसा हो रहा है। इट इज ऑलवेज यू, यू एंड यू। सो वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ दैट। अगर आपके साथ किसी ने खराब व्यवहार किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली आपकी है। उसका इंसान उस इंसान के बाकी सभी के साथ तो रिश्ते हो सकता है इतने खराब ना हो, आपके साथ खराब है ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको समझें। कॉन्शियसली अपना रिश्ता अच्छा कर सकते हो आप उनके साथ। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। अभी जब आप इस जर्नी में हो, आपकी सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है ये, आपकी सेल्फ कनेक्शन की जर्नी है ये। तो अपने आप से कनेक्ट हो। एक्सटर्नल रियलिटी कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज इंटीरियल, इंटरनल एंड एक्सपीरियंशियल। जितना ज्यादा आप डीपली इस बात को समझोगे, सारी मैनिफेस्टेशन आपके लिए चुटकियों में हो जाएगी। बस अपने लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने हाथों में लेना है। इन्होंने बोला हुआ है कि टेक द रेन्स इन योर हैंड। आप अगर आप अपने जिंदगी को एक घोड़े की तरह समझते हो, तो उसकी लगाम आपको अपने हाथ में रखनी है। बिकॉज एक्चुअली आप ही रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के। अगर आप एक गाड़ी के बारे में सोचो, दैट यू आर ऑन द ड्राइविंग सीट ऑफ योर कार, यू आर सिटिंग देयर, है ना। तो आपको अपनी गाड़ी को उसी दिशा में आप मोड़ोगे जहां पर आप मोड़ना चाहते हो, क्योंकि आप ही कॉन्शियस क्रिएटर हो अपने लाइफ के। So, with being the manifestation powerhouse, you are the conscious creator of your life। यहां पर सब कॉन्शियस नहीं आया। कॉन्शियस क्यों आया? क्योंकि हम जानबूझकर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या एनकोड कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि उस तरह से वो चले। मैं ऑफिस में डेली जा रही हूं, तो मुझे अपने ऑफिस का रास्ता पता है। मैं उसी रास्ते को फॉलो करके रोज ऑफिस जा रही हूँ। मैं नया रास्ता शायद नहीं चुनती, मैं उसी रास्ते को फॉलो करके रोज जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उस रास्ते में ट्रैफिक बहुत सही रहेगा, उस रास्ते में हो सकता है ब्रेकर्स कम आएंगे, है ना, तो मैं उस रास्ते को रोज फॉलो करती हूँ। लेकिन पहले दिन जब मैं आई थी, जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, तब मुझे इस रास्ते के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तो बार 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 उस रास्ते में जाकर मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अब ट्रेन कर लिया है कि मैं गाड़ी में बैठते ही, जब मैं बैठूंगी अपनी गाड़ी में और जब मैं गाड़ी चलाऊंगी, ऑटोमेटिकली उस दिशा में मेरी गाड़ी जाएगी। सामने से कोई व्हीकल आ जाए तो ऑटोमेटिकली मेरा पैर ब्रेक की तरफ जाएगा। कोई व्हीकल नहीं हो, रास्ता साफ जा हो, तो ऑटोमेटिकली मेरा पैर एक्सेलरेटर की तरफ जाएगा और मैं इसको चलाऊंगी। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। लेकिन पहले ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा था। मैंने कॉन्शियसली क्रिएट किया है, मैंने ही वो रास्ता डाला है जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाके अब हो चुका है, अब वो सेव हो चुका है। अब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो ये है हमारी रियलिटी। ये है सारा का सारा कॉन्सेप्ट। जब हमको ये समझ में आ जाएगा, तब हम औरों को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देना या ब्लेम करना बिल्कुल बंद कर देंगे। हमें पता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहकर हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्शियस, जब आप कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शंस देते हो, जो भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं टू रन द प्रोग्राम। अब बैंक में आप जाते हो, बैंक में आपका नंबर नाम डालते ही सारा का सारा आपका डेटा आ जाता है। आपको सिर्फ इतना ही पता है, आप डेटा एनालिसिस अगर करोगे तो आपने अपना बैंक का जो कोड है, आपका अकाउंट नंबर डाला, आपकी सारी डिटेल्स आ गई, इवन आपका सिग्नेचर भी आ गया। तो लेकिन जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स है, उन्होंने उसको ऐसे प्रोग्राम कर रखा है कि आपका नंबर डालते ही वो वैसे एनकोडिंग के हिसाब से आपका नाम आ गया कि भाई मैं सुप्रिया नेहरा है, तो उसके रिकॉर्ड ये है। तो अब आप जब कॉन्शियसली अपने दिमाग को क्रिएट कर रहे हो, आपने जैसे मान लीजिए आपने चाहा कि मेरे को अपना ड्रीम हाउस चाहिए और मेरा ड्रीम हाउस ऐसा होना चाहिए, आपने सोच लिया। अब आप कॉन्शियसली उस चीज को अपने माइंड में क्रिएट करोगे। एंड द मोमेंट यू रोट योर ड्रीम, यू नो दैट ड्रीम हैज ऑलरेडी बीन आंसर्ड इन योर पैरेलल रियलिटी। बार बार ये बात आएगी यहां पर इस बुक में आगे कि पैरेलल रियलिटी। तो पैरेलल यूनिवर्स में, पैरेलल रियलिटी में, जब भी मैंने किसी ड्रीम के बारे में सोचा है, वो क्रिएट हो चुकी है।
तो मैं अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, अपनी अलाइनमेंट के हिसाब से उस पैरेलल रियलिटी में से उस चीज को लाकर अपनी एक्चुअल रियलिटी बना लूंगी। ये इतना आसान प्रोसेस है। लेकिन वो आसान तब है जब हम अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेंगे पूरी तरह से। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने अपने आप ले ली कि मेरे साथ पता है अच्छा हो रहा है ना, तो क्योंकि मैंने बहुत अच्छे कर्म कर रखे ना इसलिए अच्छा हो रहा है। लेकिन नहीं, अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो भी वो आप ही के कर्म है, आप ही ने क्रिएट किया है। लेकिन इसका गुड न्यूज ये है कि आप उसको वापस से रीट्रेन कर सकते हो। आपका सबकॉन्शियस ही तो है, आपका अपना सबकॉन्शियस है ना, उसको आप रीट्रेन कर सकते हो। तो रीट्रेन करने के लिए आपको अपनी प्रोग्रामिंग में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे ही आपने प्रोग्रामिंग में चेंज किया, किसी पर्सन के लिए आपके मन में एंग्स्ट है, आपने उस पर्सन के साथ आपने बोला थैंक यू फॉर माय ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, थैंक यू दैट दैट पर्सन इज सो मच अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू दैट पर्सन इज सो लविंग टू हिज चाइल्ड, थैंक यू दैट पर्सन इज सच अ लॉयल पर्सन, थैंक यू दैट पर्सन हैज गिफ्टेड मी वंस, राइट, कुछ भी उसने गिफ्ट दिया था मुझे। तो रॉन्डाबन क्यों लिखवाती है पर्सन के 5 5 10 10 पॉइंट्स? वो इसीलिए तो लिखवाती है कि आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग ठीक हो। कॉन्शियसली आप उनके बारे में वो 10 पॉइंट्स लिख के अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को ठीक कर रहे हो, ताकि उस इंसान को जब आप दोबारा देखो तो आपके मन में कोई भी अड़चन ना आए, कोई भी भेदभाव ना आए, कोई भी दुविधा या दर्द ना आए। Right? So the whole magic book is about that you're consciously creating programming for your subconscious mind. शायद समझ में आ गया होगा आपको। तो लेट अस रिमेन इन दैट एनर्जी नाउ, दैट वी आर द कॉन्शियस क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, राइट। हम लोगों को इस बात को समझना है, किसी और इंसान को या किसी और सिचुएशन को हम लोग ब्लेम नहीं करेंगे। अगर हम लोग करते आ रहे हैं आज तक तो हम लोग ब्लेम नहीं करेंगे। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। हम लोग जो भी है, जहां भी है, जिस भी पोजीशन में आज हम हैं, हम वही डिजर्व करते थे, इसीलिए अब हम हैं। लेकिन अगर आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन इतनी पसंद नहीं आ रही है, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ये वाली चीज नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में वो वाली चीज क्रिएट करनी, तो क्रिएट कर लो। किसी ने तो रोका ही नहीं है आपको, क्योंकि यू आर द क्रिएटर अगेन। कोई भी अलग और बंदा नहीं है आपको क्रिएट करने के लिए। यू आर इक्वलेंट टू गॉड। हम लोग हमेशा ये बोलते हैं ना कि परमात्मा ने हमारे लिए किया है, या परमात्मा ने मुझे ये दिया, परमात्मा आपने मुझे, मतलब वो गॉड तो उसे ग्रेट हो वो वाली पिक्चर में देखा है, मतलब दैट पर्सन ऑलवेज ब्लेम्स गॉड कि भगवान ये गलत हुआ तो आपने किया है, आप क्यों मुझे खुश नहीं देखना चाहते। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप अपने आप को जब खुश देखना चाहोगे तब आप खुश होगे, किसी और की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। So take charge of your life in your own hands. You are responsible for everything. Hold that responsibility and create your dream life the way you want it. ठीक है। तो यही आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। यही चीजें हैं जो हम लोगों को समझने की जरूरत है। जब हमें इन चीजों का समझ में आ जाएगा ना, लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट हो जाएंगे। हमेशा अपने आप को क्रिएशन के प्रोसेस में बिजी रहेंगे, रखेंगे। जब भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, किसी चीज में टाइम जा रहे हो, तो आपको लग रहा है क्या कर रही हूं मैं, मेरे पास ये 24 घंटे हैं, अंबानी के पास भी ये 24 घंटे हैं, एलन मस्क के पास भी ये 24 घंटे हैं। तो वो क्या इस समय ये वाला काम कर रहा होगा? अगर आपका आइडल है दीप्ति मैम को, दीप्ति मैम हम सभी के आइडल है, हम सभी ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं, ऐसी रिलैक्स लाइफ जीना चाहते हैं, राइट। सो क्या मैं अभी इस टाइम पे गप्पे मार रही हूँ, क्या वो गप्पे मार रही होंगी इस टाइम पे? नहीं, वो तो अपना काम कर रही हैं, वो शायद अपनी प्रैक्टिस कर रही होंगी, शायद वो जहां पर भी है, जिस भी मोमेंट में, वो उस मोमेंट को एंजॉय कर रही होंगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वही करना चाहिए। मुझे अपने काम पे फोकस करना चाहिए, मुझे अपनी थिंकिंग को प्रोग्रेसिव रखनी चाहिए, मुझे अपने काम में आगे बढ़ना है, मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है। तो क्या मैं कोई ऐसा कोर्स करूं जिससे मैं अपने करियर में और आगे बढ़ पाऊं? या क्या क्या मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज कर लूं थोड़ा सा? क्योंकि घर को ऑर्गेनाइज जब हम लोग करते हैं ना, देखिए हम लोग सभी एनर्जी है, पूरा का पूरा घर हमारी एनर्जी होती है, पूरे के पूरे घर में हमारी एनर्जी डिसिपेट होती रहती है, वो स्ट्रेच होती रहती है। तो अगर घर के किसी भी कोने में कबाड़ पड़ा हुआ है या अनऑर्गेनाइज्ड है, तो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट योर एनर्जी। फ्लोरेंस कॉवेलशेर ने बोला था ना कि आपका घर जो है वो ऑर्गेनाइज रहे, तो अब आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी होती है। क्योंकि क्लटर इन योर हाउस, इन anywhere in the any nook and corner of your house, will create a clutter in your mind also, and consciously you will not be wanting that.
सो बी द कॉन्शियस क्रिएटर ऑफ योर लाइफ ऑलवेज। तो अपनी जिंदगी की गाड़ी की जो स्टेयरिंग व्हील है ना, वो अपने हाथ में रखें और अपने लाइफ को अपने हिसाब से क्रिएट करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू मी। I थैंक यू wanted फॉर to ऑल योर टाइम।